हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आपको मेरा जो भी टेलीकास्ट है, जो पॉडकास्ट है कैरियर रिलेटेड, आपको पसंद आ रहा होगा और आप और भी लोगों तक पहुंचा रहे होंगे। इसी कड़ी में आज मैं एक और नया पॉडकास्ट लेकर के आया हूं जो भी कैरियर से रिलेटेड है। तो हमारे साथ में डॉक्टर निधि हैं जो आपको बताएंगी। आप सेटअप से कुछ समझ पा रहे होंगे, लेकिन इससे डिटेल में मैं रिवील नहीं करूंगा। रिवील मैं मैम से कहूंगा कि वही करें कि वो किस प्रोफेशन में है और कितने साल से हैं। सो ओवर टू यू मैम। Myself is Dr. Nidhi Agarwal. I'm a physiotherapist. Actually, I've been in 13 years in this field. So basically, I have done my schooling. After that, I appealed at medical college. So then I give the competition exam, and then I get that physiotherapy college in that area. Great. So during my college time, basically, what I did, well, I was just practicing with that my studies with my seniors to getting more exposure for the patients, so that I get the more knowledge, connect with the patient basically. Once I finished my college, after that I went to the intern, and my intern I get lots of experience, whether like in the cardio, neuro, or ortho, well, a different way. In Right. fact, how the make the like splints, orthosis, prosthesis in the pedia patient as well. Then I got job in that Jaipur, Santokbam Memorial Dullabh Hospital. Nice. So that was my good experience in duration. After that, I had Metromas Hospital, Bhatia Hospital, many well, small hospital was there. Then I got married, so Okay. I have to shift it to that Bangalore. Okay. Nice. So in my current job, whatever was that there in that hospital, they give them a transfer. Okay. Nice. So I was continue working in then Bangalore. After that, continue with the company same 2 years. I just changed my job in the rehabilitation center for the Oh, pedia. okay. So that was a like life changing experience of my life, because in that pedia, na, I saw the pedia patient many more before that also, but whole day you are living surrounding the pedia patients. Uh, because every problem is curable. Matlab, might be taking time, matlab, duration it was there, but it will curable. But the pedia patient, they are not curable. Matlab, I felt in that they can come in that their normal life, but they can't be that cure completely. And the parents' effort, they are coming there. Matlab, that time I felt it. They are taking one day many sessions for the physiotherapy session, occupational sessions, speech therapy, behavior therapy. They are taking lots of sessions. They are investing lots of money with the one hope कि they should become in the independent life. And the child, I saw they are trying to communicate with each other. So that's a completely different area. To get then I get at the emotion area. Matlab, I feel the parents' emotions, patient emotions. So that's like opened my mind that time. So then in my pregnancy duration, I started the searching more. How can we treat that patient emotions? How we should not approach the little physical. We can do multiple approach to the patient because they need the treatment that part as well. So then I started multiple approach, different certified course, different things I did. So then I shifted to Pune, and I also practiced there this way. Then I came back to Jaipur again. Great. My life is coming again Jaipur. So now I'm at Ananda and running my own clinic, healing Great. care. That. तो मैम आपने बहुत अच्छे से अपनी जर्नी को बताया, बहुत ही अच्छा लगा जान करके मैम। तो अब अपन थोड़ा-सा स्टूडेंट सेंट्रिक बात करते हैं कि इस फील्ड में किस-किस तरह के कोर्सेज़ होते हैं और एक ये फिज़ियोथेरेपी है क्या? क्योंकि हम जानते हैं कि फिज़ियोथेरेपी कोई एक्सरसाइज़ है या ऐसा कुछ है, ये कोई मेडिकल साइंस तो नहीं है, बट क्या ये भी मेडिकल साइंस का एक पार्ट है? और इसको अपन अगर हिंदी में और अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें बच्चों के लिए, जो आज की डेट में आना चाह रहे हैं इस फील्ड में। See, physiotherapy is the part of medical only, because once you finish your like 12th graduation, after that you have to give some competitive exam for the government job, private you can directly by the merit basis you can go in. But in that first year, second year, third year, for the MBBS, BDS, BHMS, for the phys BPT, you have the same studies, same basic books. Anatomy you have to study. You have to study the pharmacology. We have to study out. We have to the ortho, surgeon, everything, gynec, everything we have to study out. And with that, we have the specific subject on the exercise therapy. So in the exercise therapy, we have the electrotherapy modalities and many other techniques which we are using in the physiotherapy. So everyone have the base is the same, but in that their field they get some specialization. That we are getting some specialization in our field. Homeopathic they are getting some specialization in their field.
I don't say that is a different part of the medical, because see, everyone has approaching the treatment the patient, healing the patient basically, Okay. to cure from their health issues, either allopathic way, homeopathic way, that naturopathy way as well I say, Hmm. and the physiotherapy, the many more techniques. We are just giving the approaches. What's the problem they have? ओके। और मैम मैंने देखा है कि मैं भी कई फिजियोथेरेपिस्ट से मिला हूँ, तो कई लोग मशीन से करते हैं, कई लोग एक्सरसाइज बताते हैं, Hmm. कई जैसे मैंने अभी रिसेंटली आपसे ट्रीटमेंट भी लिया था तो आपने एक कोई निडल वाली एक्सरसाइज भी कराई थी। तो ये क्या सब अलग-अलग पैटर्न है फिजियोथेरेपी के, इसमें जो आपका कोर्स है उसके दौरान बताया जाता है, या फिर ये एक एक्सपीरियंस के साथ में और पेशेंट के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होता है कि भाई किस पेशेंट पे क्या थेरेपी लगती है? So, in this case, I'll say basically college will giving the base study of the structures. How can we treat? How can be the diseases there? How can we approach there? So these all are the new technique, because see, if you are not go with the flow with the environment with that time, so you will not get the new things, because every time you're getting the new inventions in there, new therapies is coming. So these are needling, cupping. There's all are the like research is there, and they're getting a good therapy. So basically, in a physiotherapy, what I suggest say in the machine you was asking me, if the patient is coming in front of us, we are see the patient basically, so we know what is the problem. That is a muscular related, that is alignment related, that is that which some diseases there, we have to be cured first, that and that, some strengthening issues, many more things. So these are the approach area. If I feel an example of your, if I feel like your pain is there, but I know that is the inflammation is there, might be I go in the allopathy way, I can homeopathic way. In the physiotherapy way, I can give the modalities, I can give the cupping, I can do the needling, I can give the many more things which I have in my clinic. But my person to person, patient to patient, I'll think this approach is the better, and you're giving the quick and good results. That's my, because I give the multiple things on you, then I decide. And if I get some good experience in that way, or I feel like no, needling will be the better for you, or you felt it in the first session, you cure it. Correct. So if we get it the good approach at the same time, this is the all soft tissues. So this is needling and all this thing. You know the approach, you applied it, and then you cured it. That's ओके। all. तो जैसे मैम आपने भी बताया, तो क्या जैसे अदर स्टडीज होती हैं उसमें क्या कम्युनिकेशन भी मैटर करता है, जैसे आपको इंग्लिश आना चाहिए, इसीलिए अपना ये जो कन्वर्सेशन है हम हिंदी में इसीलिए रखते हैं ताकि क्या है, और ऑडियंस तक पहुंच सके, तो Right. अपने को हिंदी में ही आंसर देने की कोशिश करते हैं अपन, और हिंदी में ही जो हमारा Sure. लिसनर है वो सुन सके और लोगों तक पहुंच सके। तो मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे गांव के भी बच्चे कई आजकल, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग फील्ड हो गया, पहले लोगों को पता नहीं था इसके बारे में, अब लोगों को पता लगने लगा है धीरे धीरे कि नहीं, ये भी, इसमें भी एक कैरियर बनाया जा सकता है अच्छा खासा। आपने खुद ने 13 साल से आप हैं और अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड यू हैव अ गुड नेम इन द इंडस्ट्री नाउ। तो इसमें जो बच्चे हैं जो गांव खेड़े से आते हैं, चलिए कॉन्वेंट स्कूल के नहीं है, वो उनको एक बेसिक क्या नॉलेज रखें ताकि वो कोर्स में एडमिशन लेने के बाद में अपने प्रोफेशनलिज्म को और अच्छा बना सके? देखिए, किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए लैंग्वेज वहीं तक ही मैटर करती है। लैंग्वेज हमेशा पेशेंट के अकॉर्डिंग होती है, बिकॉज सी, एक एग्जांपल इसी का बताती हूँ। व्हेन आई वेंट टू द बैंगलोर, मुझे कन्नड़ नहीं आती थी, फ्रेंकली स्पीकिंग। आई नो हिंदी एंड इंग्लिश जी। सो अब मतलब ठीक, आप एजुकेटेड लोगों से मिलोगे तो यू कैन कन्वर्सेशन विद देम दैट इंग्लिश, बट बिल्कुल जो लोकल वहाँ की जनरेशन थी, वहाँ से बात करोगे तो दे यूज टू द कन्नड़। So I get some words, illa, or something, few things. So according that, I try to understand. But see, you get the expression of the patient, because see, ऐसा नहीं है कि आप गांव से आ रहे हैं, आप पढ़ नहीं सकते। बेसिकली आपको नॉलेज दी, आप बुक्स है आपके पास, बुक्स आजकल हिंदी फॉर्मेट में भी आती है, इंग्लिश फॉर्मेट में भी आती है। आपको पता होना चाहिए बॉडी क्या है, बॉडी को क्या चाहिए। फिर कम्युनिकेशन, जब आप पेशेंट से मिलते हो ना, मैं सच बताऊं, मैं अपने क्लिनिक में मेरा पेशेंट चल के आता है ना, मुझे आधी प्रॉब्लम समझ में आ जाती है। जी। मतलब पेशेंट मुझे बताता है मेरे को घुटने में दर्द आ रहा है, पर मुझे पता है कि वो घुटने से नहीं आ रहा है। जी। वो उसकी चाल से समझ में आता है। आप बॉडी की लैंग्वेज को समझो। जी। पेशेंट की लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगी। पेशेंट कभी भी ऐसे बैठ के नहीं बोलेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो अपने एक्सप्रेशन भी देगा, हैंड यूज भी करेगा, बताएगा भी, तो आपको, और आप जब उसकी चाल देखोगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि पेन क्या है। सो आई विल नॉट से कि लैंग्वेज इतना मैटर करती है। अच्छा मैम, वेरी गुड। तो इसमें मैम एक हाईएस्ट स्टडी कितनी हो सकती है, और इसमें क्या इंडिया के बाहर भी स्टडी पॉसिबल है? जो लोग आजकल अब्रॉड में भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर देखते हैं, उन स्टूडेंट्स को आप कुछ बताना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस से, या आपने कुछ ऐसी स्टडी कर रखी हो?
सी मतलब देखो इसमें बहुत अच्छी अप्रोच है। आप पहले बैचलर करें, फिर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, एमपीटी कर सकते हैं, देन आप पीएचडी भी कर सकते हैं, फिर आप समथिंग स्पेशलाइजेशन में भी, जैसे मान लो आई मीन स्पोर्ट्स, तो जी स्पोर्ट्स में भी इंटरनल जैसा सम क्राइटेरिया कि आप जी नी के स्पोर्ट्स के स्पेशलाइजेशन जी है या शोल्डर के है या पर्टिकुलर है, तो यू कैन गो इन दैट वे। तो देयर इज अ लाइक दिस नेवर एंडिंग, ओके बिकॉज स्पेशलाइजेशन नेवर एंडिंग प्रोसेस, ग्रेट बिकॉज उसके अंदर भी टेक्निक्स स्पेशलाइजेशन आप हो सकते हैं। इन दैट केस अब्रोड एरिया यू आर आस्किंग यू, तो देखिए अब्रोड में जाना एक अच्छी चीज़, आप यू गेटिंग द एक्सपोजर। सी हर एक्सपोजर की कोई लिमिट नहीं है, तो आप यू कैन गो, पर हर कंट्री का हर मतलब उनका अपना एक क्रेडेंशियल होता है। जी आपको यू हैव टू अर्न द क्रेडेंशियल फॉर दैट दैट एरिया। फिर वहाँ के कुछ लाइसेंस क्राइटेरिया होते हैं, तो जी इफ आई वांट टू गो इन द यूएस एंड एनी कंट्री, तो वहाँ के जो क्रेडेंशियल्स है आई हैव टू गेट इट दैट, आई हैव टू ओके अर्न दैट। फिर वहाँ के कुछ लाइसेंस है, उसको क्वालिफाइड करना पड़ता है। माइट बी सम क्राइटेरिया, एवरी कंट्री हैज सम डिफरेंट क्राइटेरिया, यू हैव टू जस्ट क्लियर आउट दैट क्राइटेरिया एंड देन यू कैन प्रैक्टिस। ओके तो बेसिकली वो एग्जाम्स वगैरह हैं, या तो अगर आपका बाहर जाने का इंटरेस्ट है तो पहले उनके बारे में स्टडी या करें और उनको क्लियर करें, फिर उसके बाद में आप वहाँ भी प्रैक्टिस भी यस कर यस सकते हैं। यस यस। ग्रेट। और मैम इसमें जैसे आपने बोला स्पेशलाइजेशन में, तो मास्टर्स जैसे हर फील्ड में होती है, इसमें भी जो मास्टर है, जैसे आपने अभी बातों बातों बताया कि नी का है आपका स्पेशलाइजेशन, तो इसमें भी बहुत सारे फील्ड होते हैं मास्टर्स में। देखिए मास्टर ऐसा होता है, जैसे आपने बीपीटी किया बैचलर के बाद मास्टर होता है, जैसे स्पोर्ट्स में चले गए, मस्कुलर स्पोर्ट्स में चले गए, गायनिक में चले गए, पीडिया में चले गए, न्यूरो में चले गए, आप ऑर्थो में चले गए, तो देयर इज अ डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच की। ठीक है, मेरे पास है मस्कुलोस्केलेटल स्पोर्ट्स के जितने भी पेशेंट्स आएंगे, आई शुड बी फोकस ऑन दैट। ऐसा नहीं है कि मैं न्यूरो अप्रोच नहीं कर सकती या मैं कार्डियो अप्रोच नहीं कर सकती। आई नो दैट आइडिया बिकॉज वी हैव स्टडी आउट, वी हैव द प्रैक्टिस 10 years बेसिकली every kind of patient, जी multiple especially hospital if you are working in there. So you can approach it, but some specialization you have the specify, you can treat it more better because you have the deep study on that. So that's the thing. ओके Or after that, I was saying, in a specialization also you want to be go in the deeper, then you can go particular joint ओके specialization. वो फिर आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। कई जैसे आपका नी में था तो आपने नी से किया, किसी का अगर हाथ से रिलेटेड हो तो वो हैंड में, तो इन सब के अलग अलग कोर्स बने हुए अपने होंगे अपने और courses. उस पे डीपर स्टडी होगी और उसके अंदर उसको डिग्री मिलती है। Right, right. इसमें पीएचडी भी होती है क्या या मैम? पीएचडी होती है। ओके दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट पीएचडी मतलब लाइक उसके एमपीटी के बाद, मास्टर के बाद हम पीएचडी करते हैं। ओके पीएचडी मतलब लाइक स्पेशलाइजेशन। अब मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, तो मुझे स्पोर्ट्स में भी क्या स्पेशलाइजेशन पीएचडी जी करनी है, तो वी जस्ट स्टडी आउट, वी हैव जस्ट मेक कवर मतलब रिसर्च, वी आर मेकिंग द जी रिसर्च एंड ऑल दैट। तो मैम अपन अभी इसी से डिस्कशन से को आगे बढ़ाते हुए, एक तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिर अपन जॉब्स पे आएंगे, कि कॉलेज और या यूनिवर्सिटीज जो आप अगर रिकमेंड करना चाहें बच्चों को जिनको अभी बिल्कुल नहीं पता हो, जो स्टार्ट कर रहे हो रिसर्च इस फील्ड में, और क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब 12th या 10th के बाद में कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए मिनिमम वो रिक्वायर्ड हो? देखो 12th में बेसिकली फिजियोथेरेपी के लिए बायो चाहिए थे, अच्छा बायोलॉजी से आप क्वालिफाइड होने चाहिए। उसके बाद एवरी, देखिए मैंने बोला ना, गवर्नमेंट्स हैव द डिफरेंट लाइक सम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ देयर, एंड कॉलेज हैव द डिफरेंट क्राइटेरिया, सम है कॉलेज देयर ओन एग्जाम्स इज देयर ओके और सम मेरिट बेसिस, तो यू हैव टू बी क्लियर योर 10th and 12th with a good marks ओके basically, and after that you approach the good college, which I feel like that many mall colleges there, like Sanjay Gandhi college is there, रामचंद्र है, रमेलियल है, दैट्स एसके गांधी, मतलब there's a multiple colleges there, जी Christian colleges there, so you just try, because see many more lists is there, you just see that try to approach is there, some have their own exams, some but go in the good college, I'll prefer it. या तो उसी पे मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि क्या होता है बच्चे आजकल डाइवर्ट हो जाते हैं, और उनको कैसे पता लगे कि ये कॉलेज सही है, क्योंकि आजकल एक इसको बिजनेस भी कह सकते हैं, एजुकेशन बिकम्स अ बिजनेस, Right. अ बिगेस्ट बिजनेस। तो उसमें कई बच्चे अननेसेसरी अपना 5 साल, या जो आप कह रहे हो अगर किसी ने एमपीटी तक का सोच के रखा हो तो आई थिंक 5 years लगेंगे, या बीपीटी और एमपीटी को मिला दें तो कितना, उस पर आप बताइएगा मुझे कि कितने साल होते हैं। तो वो बच्चे निकलने के बाद उनको ये रिग्रेट ना हो कि यार हमने गलत कॉलेज चूज कर लिया, हमारा प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा और हम अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे। See, देखिए first you decide your criteria. You have to in your city, out of your city, in your state, in your country. You have to be first. You see the criteria. Then just research out. Just like discuss with your seniors, या फिर the college seniors is there, या फिर college में, या फिर अपने lecturers से you can just discuss in that criteria which college is better is there. So just research out of the college, because once you approach the college, you see the college, you meet the students, you get some good idea about that. ठीक है. BPT is around in our time it was a 4 year plus 6 month internship, but Okay. nowadays as the criteria is increased, which I heard it, that is going to be 5 years plus Okay. internship.
and 2 years MPT. ओके That's PhD. Yeah. ओके तो मैम जैसे जो कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स भी आते हैं या ये एक फील्ड ऐसी है जिसमें यू हैव टू डू योर सेल्फ रिसर्च? एज सच प्लेसमेंट ऐसा नहीं आता कि जस्ट कॉल कोई कंपनी आ रही है एंड दे आर हायरिंग यू. नो, आई हैव नॉट सीन दैट थिंग करेक्ट फर्स्ट. बट इफ यू हैव द गुड नॉलेज तो माइट बी योर लेक्चरर्स, योर जो टीम ऑफ योर इंस्टीट्यूट, might be they will like guide you कि you can approach it there, या फिर they will refer you some college, अच्छे hospitals, institute as well, hospital as well, they will refer you. Otherwise you have to approach it. ओके तो जो आपने इंटर्नशिप बताई वो फाइनल ईयर में ही रहती है या इस दौरान बीच में भी करना पड़ता No, है? no, after final completed. ओके Once you clear your final year, then you can do it. ओके सो इट्स अ पार्ट ऑफ अ डिग्री, इट Yeah. इज मैंडेटरी एंड यू Yes. हैव टू शो द सर्टिफिकेट. Yeah, without that you will not एंड get वो the कहाँ से करना मैंडेटरी है? कोई क्लिनिक या हॉस्पिटल इज मैंडेटरी? better is the multi-specialty hospital. Okay. I'll prefer it because if you go and approach that now, so you have the different matlab area. Because when I did, I gave the every area, so that you get the where you have good interest, good Okay. knowledge, you can go further for the MPT. So that's a better way. ओके तो मैम इसमें अपन अगर अब अपन जॉब से रिलेटेड बात करते हैं तो एक फिजियोथेरेपिस्ट को इनिशियल फेज में कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? तो क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो सोचते हैं यार हमने मास्टर्स कर लिया, अच्छे कॉलेज से कर लिया, अब हम अपना खुद का स्टार्ट कर देते हैं. तो आपके अकॉर्डिंग और आपके 13 से 15 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैम आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बच्चों को पहले एटलीस्ट इतने साल कुछ अपना प्रैक्टिस करना चाहिए, समझना चाहिए, फिर उसके बाद में अगर आपके पास में वेल एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगेगा, पैसे भी लगेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी और आपको नाम भी बनाना पड़ेगा, तो उसको आप फिर इतने साल बाद एटलीस्ट आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं. See, what my concern is, once you finish your college, always, definitely in college you should do the OPDs. But every time you should explore whatever the theoretical part, you should come apply the practical as well. Because at that same time you will clear out that things. After that, you just go to the multi-specialty hospital, which my preference is जी. that because you get the broad spectrum. See the patient broad spectrum. You can see the OPDs, ICU patients, like IPD patients. You can see, so you feel the different things in there and different approach. Once you get the experience there, if you want to, well, you feel like I have a good enough knowledge now. I can see directly patient, assess the patient. I can treat that. So definitely you can plan that clinic, but before that, I'll prefer it to work with the someone clinics, because you feel if you're working in the hospital, you feel the different criteria. Working in the clinic, yeah, that is something is little bit different because patient directly approach you and how you have to treat. What is the you can see once you see the patient every day now, so you feel the different experience. Every patient have a different story. Every have the you get the different experience with the patient. ओके तो मैम इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं? दोनों में है. गवर्नमेंट देखो, प्राइवेट में हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, कॉलेजेस हैं, लाइक डायरेक्टली आप स्पोर्ट्स चले जाइए, जैसे आप प्राइवेटली आप ट्राई कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एकेडमीज हैं, ओके मैनी मैनी मोर, जस्ट लाइक अ पीडिया रिहैबिलिटेशन सेंटर है, Okay. कार्डियो रिहैबिलिटेशन सेंटर है, यू कैन मैनी मोर प्लेसेस है. एंड इन द गवर्नमेंट सेक्टर देयर इज लाइक एग्जाम्स इज कंडक्टिंग, दैट आरपीएससी एग्जाम्स होता है, कुछ गवर्नमेंट दे आर लाइक giving them some jobs and then they give them some exams ओके like RPSC, and you apply there, you clear out, then you get to the ranking basis, you Okay. get that criteria. So there's the, I'm saying now, if you enter in that, you get some multiple approaches there. ग्रेट. तो मैम जैसे आपने अभी कॉलेज का नाम लिया था फॉर अ जॉब प्रोस्पेक्टिव, तो उसमें आई बिलीव लेक्चरर के तौर पे जाता होगा, तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है लेक्चरर की? लेक्चरर के लिए मास्टर्स मिनिमम होता है, काफी Okay. जगह मतलब पीजी के बिना दे आर जस्ट नॉट. ओके तो इसमें नेट सेलेक्ट का कोई यूज नहीं है फिजियो में, नो जो जनरली लेक्चरशिप का गवर्नमेंट नो, सेक्टर इसमें में? क्या होता है, एमपीटी मास्टर्स आपको चाहिए होता है, मास्टर्स के बिना आपको जनरली लेक्चरशिप Okay. की नहीं मिलती है ओके एज ऑफ आई नो. ओके एंड इवन गवर्नमेंट कॉलेज में भी वो एग्जाम होता होगा टीचर्स का? मास्टर आपको करनी कंपलसरी तो होती है, teachers या फिर का टीचिंग का स्पेशली दे आर टेकिंग द एग्जाम्स. ओके ओके तो इस मैम इस प्रोफेशन में अपन एक एक्सटेंड कितना मान सकते हैं कि व्यक्ति अगर अपनी अच्छी नॉलेज रखे तो वो किस लेवल तक अपने आप को ले जा सकता है, हाईएस्ट किस पोजीशन तक पहुंच सकता है वो? See, I'm just telling you one of my mentor story about यस her. प्लीज. So when I saw him, he was in my college. He was like my senior. He was doing the MPT. That time, that is that around, I think so. When I was first year, and he was MPT final year. So almost, I think so, 17, 18 years back. That's the story. So I met it, like last year only, and I see the difference level of him. I see the approach of him. I also inspire from that from him. He now
he that much that he can treat in a patient in a many prospective way. If I give the patient, he will say, no, this is the that way, no, this is the not physical, this is emotional, that is nutrition, no, I can do this way, you do not need to go for this, might be operation, might be this criteria. So his approach is like a huge, I can say that huge approach is there. So I don't know, external limit is not there. Matlab, that's you are where you want to approach. ओके, सो कम्प्लीटली इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। तो मैम अपन फिजियोथेरेपी में कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं? Branches just musculoskeleton, sports, pedia, ortho, neuro, gynae, cardio, just multiple. ओके, और इन सब के अलग अलग कोर्सेज हैं या वो सब जो आप जब बीपीटी करते हैं तो उसमें आ जाता है? बीपीटी में सब आता है। बीपीटी में आपको गायनिक सबका नॉलेज देता है, सबका नॉलेज आता है, पीडिया में नॉलेज आता है, गायनिक भी होता है, ऑर्थो भी होता है, न्यूरो भी होता है, कार्डियो भी होता है, इनफैक्ट सर्जरी तक भी किया जाता है, हम लोग सब नॉलेज दिया जाता है। इनफैक्ट पेशेंट के जो ऑर्थोसिस प्रोसेसेस कैसे बनते हैं इनके बारे में, मतलब एवरीथिंग यू गेट दैट मॉड्यूल देयर इज देयर। पर उसके बाद आपको एमपीटी में जाने के लिए क्या अप्रोच करना है, फिर उसके बाद फर्दर फीज में जाने के लिए आपको क्या अप्रोच करना है, दैट्स अप। और फिजियोथेरेपी में मेडिकल साइंस तो है बट मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है इसमें कुछ भी? नो, फार्माकोलॉजिकल हम लोगों को बेस पढ़ाया जाता है। जैसे पेशेंट हमारे पास आता है, वो जी। हमें बताता है प्रिस्क्रिप्शन, आई एम टेकिंग दिस मेडिसिन, डेफिनेटली वी शुड नो द आइडिया व्हाट्स द मेडिसिन ही इज टेकिंग, व्हाट इज द क्राइटेरिया जी। देयर, व्हाट्स द प्रॉब्लम, बिकॉज सम टाइम पेशेंट को नहीं पता होता कि मेडिसिन क्यों दी हुई है, पर जी। आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है, बट हम लोगों को राइट नहीं होता ओके मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, वो उनका काम है। ओके, तो इसी तरह इसीलिए उसी आई थिंक उसी दौरान आपको ये एक्सरे और ये सारा पार्ट भी हाँ, हम लोगों को पूरा स्टडी का रेडियो, है? या रेडियो हम लोगों को, क्योंकि आज मेरे पास एक्सरे आता है। जी सी मैंने बोला ना, आपका विजन क्या है, दैट्स इम्पोर्टेंट। जी जैसे मेरा एक्सरे आता है, मैं कभी भी एक्सरे में ये देखने के लिए पेशेंट से एक्सरे नहीं मंगवाती कि क्या है, मैं सिर्फ वो देखती हूँ जो मुझे देखना है, जी मेरे प्रोस्पेक्टिव से क्या जी देखना है। तो एक्सरे आपको आना चाहिए, डेफिनेटली आपको आना चाहिए। ग्रेट। तो आई थिंक मैम मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमने कवर कर लिए हैं और आपने अपनी जर्नी भी बहुत अच्छे से बताई। तो अगर लास्ट में कुछ बच्चों को आप बोलना चाहें कि जो भी फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहें, नॉट फॉर द सेक ऑफ मनी और पड़ोसी कर रहा है इसलिए मैंने कर ली, अपने माइंड में क्या सोच के इस प्रोफेशन में घुसें और किस तरह का इसमें वर्कलोड भी, क्योंकि देखिए आजकल बच्चे क्या है बहुत जल्दी स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। तो कल को वो ना हो कि वो 1 साल पढ़े हैं फिर उनको लगे कि यार ये तो बहुत ही खतरनाक फील्ड है, चलो हम कुछ और पढ़ लेते हैं, क्योंकि बायो ले रखी है तो हो सकता है वो किसी और फील्ड में चले जाएं। तो किन इन बच्चों को आप किस चीज को ध्यान रखने के लिए बोलेंगे मैम, एज पर योर एक्सपीरियंस, और आपने भी काफी आसपास देखे होंगे ऐसे? देखिए, मेरा ये मानना है, आपने कोई भी सब्जेक्ट चूज़ किया है, हर सब्जेक्ट की मल्टीपल अप्रोच होती है। ऐसा नहीं होता कि आप मेडिकल है तो आप केवल हॉस्पिटल्स अप्रोच करते हैं। आप टीचिंग अप्रोच भी कर सकते हैं। यू कैन टेक लाइक मेडिकल, आजकल राइटर अप्रोच भी है, देयर इज़ अ क्लिनिकल रिसर्च, मतलब मल्टीपल अप्रोच इज़ देयर इन दैट। तो यू फर्स्ट यू सी आपका इंटरेस्ट कहाँ आ रहा है। बट इन द मतलब मेडिकल पर्सपेक्टिव, आई विल से इन द क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स, मैं ये बोलूँगी डायरेक्टली यदि आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, तो आप ऐसा मत सोचो कि पेशेंट ने आया, बोला मुझे और आई जस्ट स्टार्टेड द ट्रीटमेंट, नो। आपको पहले पेशेंट को देखना है, पेशेंट की बॉडी को फ़ील करो, पेशेंट के पेन को देखो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बॉडी, पेशेंट को भी समझाओ। व्हिच आई फ़ील जब तक पेशेंट को खुद की अपनी बॉडी नहीं समझ में आती ना, आप जितना बता दोगे वो कुछ नहीं करेगा, और ही कम बैक विद द सेम पेन, सेम थिंग्स एंड दैट। तो पहले आप उसकी बॉडी को समझो, उसको अपनी बॉडी को समझाओ, सी द रीज़न व्हाई द पेन इज़ कमिंग। तो बेसिकली जब तक आप ये नहीं समझोगे ना ये क्यों आया है, द रूट कॉज़ पे आप नहीं पहुँचोगे ना, सो आई डोंट थिंक सो यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स। तो आई विल प्रेफर इट कि आप समझो कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना है। आपको नहीं आता, लर्निंग की कोई फ़ीस नहीं है कि आप इस एज पे आ गए तो अब आपको नहीं। मैं आज भी पढ़ती हूँ, मैं स्टिल, मेरा हर एक पेशेंट मुझे कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है और मैं उस पे ट्राई करती हूँ कि आई जस्ट जी गेट इट द गुड रिज़ल्ट इन दैट। तो कोई फ़ेज़ नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, डू हार्ड वर्क। नहीं आ रहा है, अपने सीनियर्स को पकड़ो, अपने मेंटर्स को पकड़ो, यू विल गेट द गुड अप्रोच, डेफिनिटली विल और गेट द गुड ग्रेट अप्रोच। मैम, एक अपन ने जो बातों बातों में मेरे भी, और ये प्रैक्टिकल चीज है, हम देखते हैं मेडिकल साइंस की अपन ने बात करी, उसमें क्या वो मेडिसिन दी या तो 1 दिन में या 2 दिन में। आपकी जो फील्ड है मैम, इसमें एटलीस्ट कई कई जगह मिनिमम 1 वीक का तो मान के चलते हैं कि उसमें टाइम लगता है। टचवुड अगर कोई नॉर्मल होगा तो हो सकता है 2-3 दिन में हो जाए, अदरवाइज एक मिनिमम प्रैक्टिस होती है कि 1 वीक का तो आपको सिटिंग देना पड़ता है। इसको अपन जनरल टर्म में बोलेंगे तो सिटिंग ही कहलाएगा वो। तो वो एक क्या कारण है मैम, इसमें इतना टाइम क्यों लगता है ये और फिर आउटपुट निकलता है बट ये टाइम कंज्यूमिंग क्यों है मैम, इसमें इतना थोड़ा सा अगर आप रोशनी डालना चाहें? देखिए, बात आप कर रहे हैं, हाँ, देखिए जो आपका मेडिकल, जैसे एलोपैथी है, आपका होम्योपैथिक है, दे जस्ट वर्क आउट ऑन दैट पेन थिंग्स, ठीक है।
अब मेरा ये मानना है पेन अप्रोच हम भी करते हैं। हम पेन अप्रोच मल्टीपल वे है, जैसे मैं मेरा बताती हूँ। हो सकता है मोडालिटीज़, इस पेशेंट को मोडालिटीज़ की ज़रूरत है, किसी पेशेंट को मुझे लगता है कि नहीं निडलिंग की ज़रूरत है, कपिंग की ज़रूरत है, कायरोप्रैक्टर की टेक्निक्स की ज़रूरत है, आई फील सम लाइक टेपिंग्स की ज़रूरत होती है, मायोफेशियल रिलीज़ भी ज़रूरत होता है, कभी को किसी को इमोशनल रिलीज़ भी ज़रूरत होता है, किसी को सिर्फ न्यूट्रिशनल की ज़रूरत है। जी, सो वील गेट दैट अप्रोच। तो मेरा ये मानना है टाइम 2 रीज़न से लगता है। या तो समवेयर हम लोगों को लगता है कि कुछ पेशेंट का देखो क्या होता है, पेन बहुत पुराना होता है। हम जी, पेशेंट को बताते हैं पेशेंट आपको ये करना है, बट हमें पता है कि पेशेंट घर जाके कुछ नहीं करना। वेरी फ्रैंक यदि वो कुछ करता जी, तो शायद हमारे पास आता ही नहीं। जी, तो पेशेंट की एक हैबिट होती है, आपने बोला कि चलो मैंने ये कर दिया, आपका पेन अभी कम है, अब आपको घर पे ये करना है। वो घर पे जाके कुछ नहीं करेगा एंड दे आर जस्ट कम बैक विद दैट, क्यों नहीं मैंने तो किया था, और वो किया होगा शायद 1-2 रिपिटेशन में ही जस्ट लाइक डन दैट। जी, तो उसकी वजह से हमें पेशेंट को बुलाना पड़ता है कि यू हैव टू बी कम टू द क्लिनिक एंड करेक्ट, बिकॉज़ क्या होता है ना, आप जब तक सर्टेन वो देखिए क्या होता है, एक मसल है ना, एक मसल को आप ठीक कर रहे हो, मतलब जी, कुछ काम कर रहे हो, जी, तो मेडिसिन अपना काम करती है। फिज़ियोथेरेपी में क्या होता है, हम उसकी स्ट्रेंथ को बिल्ड अप कर रहे होते हैं, जी, रिलीज़ कर रहे होते हैं। जी, तो कोई भी स्ट्रेंथ ऐसा नहीं है कि हमने 10 रिपिटेशन क्लिनिक में किया एंड देन डन। नो, करेक्ट, इट विल टेक द मेनी थाउज़ेंड्स रिपिटेशंस और जी, डेफिनिटली वो पॉसिबल नहीं है। तो पेशेंट यदि जैसे मेरा मेरा अप्रोच ऐसा होता है, मैं कभी पेशेंट को नहीं बोलती कि जी, कितने दिन आता है। इनफैक्ट जी, आई यू नो दैट वेरी वेल। जी, जी, मेरा करेक्ट, पेशेंट बोलता है कितने दिन, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। हाँ, आपने काम किया, मैंने सही काम किया, मेरी अप्रोच अच्छी है और आपने अच्छा काम किया ना, हो सकता है आपको कल आना ही नहीं पड़े। करेक्ट, तो मेरा क्लियर फंडा है, आप मेहनत करोगे, आप मेरी शक्ल नहीं देखोगे, आप मेहनत करेक्ट, नहीं करोगे, आप मेरी शक्ल देखिए, मेरी नहीं तो करेक्ट, किसी और की शक्ल देखोगे। करेक्ट, सो दैट्स माय पॉइंट, मतलब आई विल नॉट बिकॉज़ मैं उस प्रोटोकॉल पे काम नहीं करती कि आपको इतनी सिटिंग आना है। मेरा प्रोटोकॉल ये रहता है, आई विल ट्राई माय बेस्ट अप्रोच, मुझे लगता है कि नहीं हुआ, आई विल ट्राई माय डिफरेंट अप्रोच एज़ वेल। मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे भी लैग करा, तो ऐसा नहीं है कि मैं खुद ही ट्राई करती रहूँगी। आई विल गेट इन माय अदर सीनियर्स या फिर माय टीम लीड, मतलब टीम्स की हेल्प लूँगी कि यार क्या मैं मिस कर रही हूँ, माइट बी समथिंग आई मिस्ड आउट, so they can help me out. So I'll try to get the better approach to the like as soon as we can recover it. But मैं एक पेशेंट को ज़रूर बोलती हूँ, आपने कुछ नहीं किया तो you change the doctors, you change the therapist, doesn't make sense. You have ग्रेट, to work with yourself ग्रेट। as well. आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम निधि जी। तो मैं लास्ट में बस यही पूछना चाहूँगा मैम, एक तो आपसे अगर कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहें, तो आप क्या होम विज़िट भी देते हैं या आपके क्लिनिक पे ही किसी को विज़िट करना पड़ेगा? तो आप अपने बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए कि कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं? और दूसरा ज क्योंकि ये एक नॉलेज सेशन है, तो अगर कोई बेसिक, क्योंकि हम देखते हैं क्या होता है आजकल स्ट्रेस में कई बार लोग जल्दी-जल्दी में चलते हैं, तो एकदम से गिर जाते हैं या कोई बेसिक बातों का ध्यान रखें, जिससे कि एक्स्ट्रा मतलब कोई इंजरी हो गई तो वो तो अलग बात है। बट एक बेसिक इंजरी अपने आप से बचा सके, जैसे ट्यूनिंग से बच सके या कोई कभी हाथ मुड़ गया या उस चीज़ों का ध्यान रखते हुए, तो अगर कोई बेसिक एक्सरसाइज़ जिससे कि बॉडी फ्लेक्सिबल बनी रहे, ताकि क्योंकि कई बार इस कारण से भी कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, मतलब चलिए कि पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। आई हैव द क्लिनिक दैट हील एंड केयर, एडवांस फिजियोथेरेपी क्लिनिक। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 8095 111 548। सो बेसिकली आप मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट मेरा प्रेफ़रेंस, मैं होम विज़िट में एक्चुअली मैं सिर्फ़ उन्हीं के लिए प्रेफ़र करती हूँ होम विज़िट, दे कांट मूव फ्रॉम द बेड या दे इवन कांट कम एट माय क्लिनिक, देन ओनली आई विल सी दैट। अदरवाइज़ जो इंसान मूव कर सकता है, आई विल प्रेफर टू कम टू द क्लिनिक बिकॉज़ my hand is open here. At my home, somewhere I restricted my hand, and here is my open hand. Second thing, which you asked me that one thing, some ideas about that. तो I'll prefer it कि देखिए हर बॉडी अलग होती है। मतलब मैं इनकी बॉडी को सेम एडवाइस नहीं कर सकती, मैं भी आपकी बॉडी को सेम एडवाइस नहीं कर सकती। इनफैक्ट मैं मेरी खुद की बॉडी को सेम एडवाइस नहीं कर सकती। विच आई फील हर बॉडी का चलने का पैटर्न डिफरेंट होता है, वेट बेयरिंग का पैटर्न डिफरेंट होता है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम होती है, कुछ बोलते हैं मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम होती है। इट्स नॉट अ कॉमन थिंग बिकॉज़ बॉडी इज़ नॉट इन अलाइन्ड, समथिंग इज़ मिसिंग देयर, तो यू हैव टू कैप्चर दैट एंड वर्क दैट। तो मेरा ये नहीं है कि आप उसके लिए एक फिजियोथेरेपी से आप आके गाइड लो, यू गेट योर बॉडी, मैंने कहा ना आपकी अपनी बॉडी को समझो, यू अंडरस्टैंड योर बॉडी, आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, करेक्ट दैट एंड जस्ट फॉलो दैट वर्क। तो मैं मतलब मेरा पर्सनली पर्सपेक्टिव रहेगा। अदरवाइज़ उसके लिए तो फिर मैं यही बोलूँगी ना, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ करो, बैलेंसिंग करो। ऐसा नहीं है कि आपने बॉडी को बहुत ज़्यादा स्टिफ़ कर लिया है, बहुत ज़्यादा लूज़ कर लिया है। आई प्रेफर मेंटेन योर मसल टोन, आई विल डेफिनिटली आई विल सी। बट हर बॉडी हैज़ अ डिफरेंट इश्यूज़। तो मैं मतलब मेरा पॉइंट रहता है बॉडी टू बॉडी विल गो, दैट्स अ बेटर वे, व्हिच माय प्रेफरेंस इज़ दैट। ओके।
थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों होप आपको पसंद आया होगा ये डिस्कशन, और आप भी अगर अपना करियर फिजियोथेरेपी में देख रहे हैं तो मैम ने बहुत सारे इनपुट्स दिए हैं, कॉलेजेस के बारे में भी, स्कूल और आपकी एजुकेशन से रिलेटेड भी, और आगे चल के आप कब अपना क्लिनिक खोलें, कब आपको कितने टाइम तक एटलीस्ट आपको हॉस्पिटल्स में काम करना चाहिए या क्लिनिक में काम करना चाहिए, और ये सब आपको नॉलेज मिला होगा और आपको इससे हेल्प मिले। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, होप इट हेल्प्स यू।